Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. This is about Nikshay. Nikshay is the portal which was developed by the TB program. They started around 2011 and it came out functional from 2012 onwards. So 2013-14 this got Nikshay portal got the National Excellence Prize for being the best health portal and amongst the best portals for in the country. What this talks about is how to access Nikshay. इसमें what is the patient management workflow, उसमें auto updates, other things, and how do you ask for help, and how to access the training materials. It is available in 13 languages when they are doing it across differently. So this is how Nikshay looks like. This is the National TB Elimination Program. People have a login or whatever जो भी. अब इसी में मतलब this is how it looks like. अब let's suppose you have to ask for help या training material. If you just go into training material, so all different kind of patient management के लिए क्या है, DBT के लिए admin क्या है, reports कहाँ से, what is new, other documents, adherence के लिए क्या. So everything whatever is there is available. It's freely available. तो ऐसा कुछ नहीं है कि चीजें कोई छिपी हुई हैं क्या है. So that everywhere in the country it is standardized. That is the idea. So it actually helps in giving same messages across the country. तो कोई difference नहीं आएगी चीजों में. So it's an integrated system for TB patient management and care in India. It was launched in 2012, as I mentioned. 2011 onwards it was here, and उसके बाद फिर obviously improvement और अब version 2 2018 से whatever आ गया. मतलब how does it matter 2, 3 whatever, नाम तो Nikshay ही है. So that is how it is. So it has a unified interface for public and private sector health care providers. It has different types of logins. स्टेट के अलग हैं, डिस्ट्रिक्ट के अलग, टीबी यूनिट्स के अलग हैं. ईच PHI वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे, पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, तो उसके लिए फिर स्टाफ के लिए अलग है, प्राइवेट प्रोवाइडर के लिए अलग. सो एवरीबडी कैन डू इट फ्रॉम देयर. केमिस्ट के लिए भी, लैब्स के लिए भी, PPSA जो एजेंसीज हैं उनके लिए भी, सबके लिए अपनी लॉगिन है. सो दैट दे कैन पुट अक्रॉस देयर डेटा, दे कैन एनालाइज ऑन देयर डेटा. एंड ऑब्वियसली धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं उसकी राइट्स उनके पास आती जाती है. सो दैट लेट्स से अ DTO एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विल बी एबल टू सी द होल डिस्ट्रिक्ट का सारा कुछ देख सकता है, स्टेट लेवल पे सारी चीजें देख सकते हैं. हाँ, रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग ऑफ कोर्स. So it integrates all adherence technologies such as 99 dots and MERM. These are adherence की वो सब. और इसमें स्पेसिफिक एंट्री फॉर्म्स फॉर ड्रग सेंसिटिव, मतलब जो नॉर्मल टीबी वाले हैं उसके लिए या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए, सबके लिए है. एंड इट इज मोबाइल फ्रेंडली, सो इट हैज अ मोबाइल ऐप आल्सो. सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर. आप जो वो बातें कर रहे थे ना डेटा के लिए, सो एवरीथिंग कैन बी डन देयर. इट हैज अ मोबाइल ऐप. मैंने उस वक्त नहीं बोला, it was idea coming out from you. We need to listen and understand what your thoughts are also there. Everything is there. So you see, it talks from, let's say, identifying a TB suspect या presumptive TB या confirmed, वो वहाँ से उस level से it just starts from that point. तो it starts from there. फिर diagnosis कि भाई जो भी diagnosis बनी, जो कुछ भी हुआ. So you see, why does it say one time? Say भाई अगर आपने you have identified let's say राम कुमार, तो राम कुमार तो एक ही बार आएगा ना, तो इसलिए वो वन टाइम है. उसकी डायग्नोसिस भी एक ही बार होगी, कंफर्म हो गई, डायग्नोसिस हो गया, तो वो एक ही बार होगी, तो इसलिए वो वन टाइम है. अब ट्रीटमेंट भी अगर उसकी की गई है तो वन टाइम ही होगी, राइट.
ये हो सकता है उसे दोबारा हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट देन अगेन इट विल बी अ वन टाइम ओनली, राइट? वो है। अब एडहेरेंस मॉनिटरिंग, उसकी ट्रीटमेंट जो चल रही है, वो चीजें क्या हो रही हैं, इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, सो इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। अब फॉलो अप टेस्ट, भाई उसकी हमने 2 महीने दवाइयाँ दी, अब दवाइयाँ एक्ट कर रही हैं ठीक या नहीं कर रही हैं, उसके लिए जब 2 महीने के बाद, फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट के बाद फर्स्ट टेस्ट होती है, जस्ट टू सी इफ द ट्रीटमेंट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो यू विल नो कि अच्छा चलो ठीक है, अब उसकी जो स्मीयर माइक्रोस्कोपी हुई उसमें उसके रिजल्ट नेगेटिव आ गए, दैट मीन्स द ट्रीटमेंट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, थिंग्स आर फाइन। लेट्स सपोज उसके बाद फिर जब 2 महीने और होंगे, फिर सब्सिक्वेंटली एक और उसकी स्क्रीनिंग होगी। हो सकता है कि शुरू के वक्त जो टीबी के बैक्टीरिया थे फर्स्ट लाइन के ड्रग से बड़ा अच्छा काम किया, सब कुछ हुआ, वो 2 महीने के बाद उसके बैक्टीरिया की लोड इतनी कम हो गई कि हमारी स्मीयर नेगेटिव आ रही है, लेकिन उसमें रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स थे बैक्टीरिया के। वो जैसे बताया था कल ही मैंने कि टीबी का बैक्टीरिया बड़ा रिलैक्स्ड बैक्टीरिया है, मतलब उसे बहुत, मतलब 2 दिन में एक बार डबल करता है वो। हाँ, तो हो सकता है वो शुरू के वक्त में उसने जितनी दूर तक डबल किया उतनी एडिक्वेट लोड 2 मंथ्स में नहीं आई, उसकी स्मीयर तब भी नेगेटिव आ रही है। अगले 2 महीने में क्योंकि वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो चौथे महीने पे जब आपने टेस्ट किया वो फिर पॉजिटिव आ गया, तब हमारी घंटी बजेगी, अरे यार ये तो लगता है रेजिस्टेंट स्ट्रेन है। उसकी फिर डायग्नोसिस के लिए जाएगी कि भाई ड्रग रेजिस्टेंट है या नहीं है, व्हाटएवर। सो एडहेरेंस मॉनिटरिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। फॉलो अप टेस्ट इज मल्टीपल टाइम्स, डिफरेंट फॉलो अप। अब अगर ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन का है, डीआरटीबी है, एमडीआरटीबी है या एक्सडीआरटीबी है, जो भी, तो उसमें हर वैसे ही 2-2 महीने पे उसकी टेस्ट होती रहेंगी। सो दैट्स व्हाई इट इज अ मल्टीपल पॉइंट। अपडेट पेशेंट डिटेल्स, पेशेंट डिटेल अगर मान ले उसने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया तो आपको करना, या वो यहाँ से दूसरी स्टेट में ही चला गया तो यहाँ से ट्रांसफर आउट करना है, वहाँ ट्रांसफर इन करानी है, तो वो चीज वहां पे हो जाएगी। और फाइनली उसकी आउटकम, राइट? सो क्या हुआ, ट्रीटमेंट कंप्लीटेड, क्योर्ड, दैट स्मॉल बिट जस्ट मैं ऑफ द कफ करके बता रहा हूँ। देयर आर 2 थिंग्स इन टीबी। ट्रीटमेंट कंप्लीटेड इज कि पूरी ट्रीटमेंट जितने भी 6 महीने की थी आपने दवा दी, खत्म कर दिया, हो गया, तो दैट इज ट्रीटमेंट कंप्लीटेड। लेकिन 6 महीने की दवा देने के बाद अगर उसका फिर से टेस्ट किया हमने, ये फॉलो अप टेस्ट किया हमने, और उस वक्त वो नेगेटिव निकला, तो वी आर टोटली अश्योर्ड कि वो क्योर्ड है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट कंप्लीटेड and cured. Cured is only when a full test is done at the end, so we give a cured as an outcome. One very unique thing about TB is during his or her treatment of TB, let's suppose there is a TB patient who was initiated on treatment, 6 महीने की उसकी TB treatment होनी है. Within those 6 months, if he dies of anything, रोड क्रॉस कर रहा है, सड़क पे गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, तो it comes as TB death. It comes as TB death. It's a tricky thing, लेकिन डेटा मैनिपुलेट ना हो इसलिए टीबी प्रोग्राम ने उसको वैसा ही रखा है, it comes out as TB death. So आउटकम उस वक्त पे लेट्स से ट्रीटमेंट नहीं भी कंप्लीट हुई, जो भी हुआ या व्हाटएवर, वो उस समय ट्रीटमेंट में है, उसकी डेथ हो गई, तो वो डेथ आएगा एज आउटकम। सो दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट टीबी की। जैसे वी शोड यू टीबी, एचआईवी, टीबी डायबिटीज, हाउ देयर इज अ क्रॉस लिंकेज, राइट? सो एनीबॉडी हु इज आइडेंटिफाइड ऑफ टीबी हैज टू बी स्क्रीन्ड फॉर एचआईवी। अगर उसकी एचआईवी स्टेटस पॉजिटिव आई तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसको लिंक करना है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीबी प्रोग्राम। सिमिलरली टीबी प्रोग्राम स्टार्टेड द फर्स्ट वन विथ कोविड, सो एनीबडी हु इज अ सस्पेक्ट ऑफ टीबी कम्स विथ कॉफ हैज टू बी स्क्रीन्ड फॉर कोविड ऑल्सो।
इसलिए इस बीच में टीबी के सस्पेक्ट्स भी बहुत कम हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि टीबी की जांच कराने के लिए आएंगे, ये कोविड भी करा देंगे, 15 दिन कहीं हमें क्वारंटाइन में खड़ा कर देंगे. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस. दिस इज अगेन you see, TB already has its stigma, you are adding COVID stigma on the top of it. But what it has done is, it has helped both. Because at the central level, Central TB Division is the coordinating agency for COVID also, because it is airborne infection, just like tuberculosis. So these are how the basic calculation. So you see, सारे जितने भी action हैं, it's all auto calculated, because it's a portal in itself, so that there is no manual error and other things. So these things, enrollment अगर है तो वो how it will be done, भाई negative है, TB not diagnosed, तो भाई automatically negative है तो भाई TB नहीं है ना, तो he needs some other diagnosis. हो सकता है उसे आजमा हो, इसलिए उसे खांसी हो रही हो. It is not TB anymore. So let him go to some other department and get things managed. This is not a TB related issue. अब positive diagnostic test result आया, तो it is diagnosed but pending treatment. There could be ना कि भाई बंदा गया, उसने टेस्ट कराया, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आ गए, अभी तक वो गया नहीं है अपनी ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए. या officially the thing is, as soon as somebody is identified positive for TB, the role of it is health to see that he or she is initiated on treatment. So the responsibility lies with the health system. वो हमारी responsibility है. अब वो जहां भी भागे, वो राजस्थान का है, वो तमिलनाडु भी भागेगा, या वो आसाम भी जाएगा, हम उसे ढूंढेंगे, हम उसे ट्रीटमेंट देंगे. दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इट विल शो. लेट्स से वो जयपुर का था, जयपुर में दिखाएगा कि भाई एक तो आइडेंटिफाई हुआ बट वो ब्लिंक कर रहा है, अभी भी उसकी ट्रीटमेंट नहीं शुरू हुई है. सो इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर ऑफ लेट्स से राजस्थान एट जयपुर कि भाई मेरा एक पेशेंट कहीं भाग गया है, उसे मुझे ढूंढना है, उसे इनिशिएट कराना है. Otherwise, it will always show कि नहीं, treatment not initiated, it is still pending. अब treatment initiation हुई, so now you know it is notified. उसको एक TB नंबर मिला कि भाई 00131 RJ राजस्थान / जयपुर JAI / 2021. So that way is kind of number is given. So there is a unique identity for that patient. अब वो कहीं भी जाएगा तो दैट आइडेंटिटी विल लिंक टू हिज ये, और उसी तरह आउटकम विल बी असाइंड. सो आउटकम इज वही कि भाई उसकी टीबी ये हो गई, क्योर हो गया या नहीं हुआ, या ही हैज टर्न्ड आउट इनटू अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वन. Whatever is there, you have to give a outcome. If there is a patient entered, there has to be outcome. वो अगर मतलब वो कहेगा कि नहीं मुझे अब टीबी की दवा लेनी ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, जो भी कर लो, आपने सारी काउंसलिंग कर दी, सब कुछ कर दिया, व्हाटएवर कर दिया, वो नहीं ले रहा या भाग गया कहीं, ही इज लेट्स से माइग्रेंट वर्कर समवेयर, बंगाल से आया हुआ या बिहार से आया हुआ है, वो वापस वहां चला गया है, जो भी आप मिस आउट हो गया, यू स्टिल हैव टू गिव एन आउटकम कि यस LFU हो गया वो. सो दैट इज अगेन, इट शुड नॉट बी LFU. आपकी जब परसेंटेज आएगी तो आपका ओवरऑल नंबर्स परसेंटेज में कम हो जाएगा. सो अगर देयर इज एनी इश्यूज और व्हाटएवर, वो निक्षय के पोर्टल पे भी देखा था कि देयर इज अ टोल फ्री नंबर 1-800 वाले जितने नंबर्स होते हैं, इट इज देयर. यू कैन आस्क फॉर हेल्प ऑल्सो थ्रू द रिक्वेस्ट लॉग इन वहाँ पे, एंड जो भी अगर अदरवाइज you have full training material to go through and see कि उसको कैसे sort out कर सकते हैं. This is how, let's say, a small kind of outcome or whatever will come कि भाई presumptive 2 थे, उनकी दोनों की अब test pending है, so obviously it is TB is still not confirmed. उतने 267 have not been started on treatment.
So something has to be done for their, they have notified 798 patients जिसमें इतने की स्टार्ट ही नहीं हुई है, so many have started, और उतने 113 का कोई आउटकम वी हैव ऑलरेडी असाइन, whatever it might be, cured हो या ट्रीटमेंट कंप्लीटेड हो या डेथ हो, whatever it might be. So and this is how it will show as a report कि भाई ये इतने थे, these are the different blocks and other things. So it comes out as like that. It's a portal which helps you analyze data. It shows something जो आप इसको सीधा कट कॉपी पेस्ट करके आप प्रेजेंटेशन देना है मिशन डायरेक्टर NHM को या प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी को, तो वो चीज़ें आप बड़े आराम से इससे कर सकते हैं. एंड दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्प्स. आप एप्लीकेशन ट्रेनिंग के लिए कुछ सिस्टम्स इश्यूज बग्स हैं, वो सब के लिए एनी स्पेसिफिक फीचर रिक्वेस्ट भी अगर आपने करना है या व्हाटएवर यू रिक्वेस्ट फॉर इट, देयर इज अ बैकएंड सपोर्ट व्हिच हेल्प. अच्छा, दिस इज ऑल मैनेज्ड बाय NIC, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है NIC, दे मैनेज दिस होल सिस्टम. So it's a total government based, कहीं और कुछ भी नहीं है. There's a full confidentiality with data and everything. So मतलब it follows all the government rules, regulations and guidelines. How you log in इसमें. अब this is again वही help center से क्या है. How do you report a bug? You have to put across भाई क्या आपको लग रहा है, क्या चीज़ें हैं. अगर आप स्क्रीनशॉट कुछ ले सकते हो तो वो स्क्रीनशॉट चिपका दिया, वो कर दिया, so that it becomes easy for the other side to understand all those. वैसे ही कोई नई फीचर चाहिए आपको स्पेसिफिक स्टेट के लिए कुछ चीज़ चाहिए, कहाँ पे आपको चाहिए, बैकएंड में चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए, मोबाइल वाले पे चाहिए, whatever. So all those things you can do. This is how the support team works. User, it calls the call center, it goes into that, फिर वो engineers और ये सबको assign करते हैं, सब सारी चीज़ें करते हैं. So this happens that way. फिर what's new? ट्रेनिंग मटेरियल, कुछ भी नई चीज़ आई तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग मटेरियल बनाकर वो चीज़ अपलोड कर दी जाती है ट्रेनिंग सेक्शन में. फिर जैसे वही दिखाया था ट्रेनिंग मटेरियल कहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ इट इज. इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली एंड इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड इट इज एक्चुअली वेरी अमेजिंग. आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ पोर्टल एनीवेयर इन द वर्ल्ड. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.